आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम अपने पेशेंट्स की रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पेशेंट गौतम वर्मा से। The lesson I learned after my first hair transplant is post care is very important after every transplant, and which I was not really guided properly by the Turkish doctors there. The doctor didn't really know the language. We had a translator which will translate everything what I'm saying and what the doctor is saying, but nothing really was working out. Somebody referred me to QSG Delhi, and I started looking into other clinics in India as well, and finally I chose QSG Delhi. I traveled to India through Qatar Airlines. It was about 24 hours travel to New Delhi, and after landing down here, the clinic is approximately about an hour. Today is such an important day for me. It's my second hair transplant. The first one I got it from Istanbul, Turkey, and the second one I chose QSG Delhi after a lot of research. So let's go check it out. One year ago, I actually went to Istanbul to get my hair transplant done, and after 1 year of results, this is what I got. After a lot of research to get a second hair transplant done, I chose QSG Delhi, which was the closest one to my place. They got 4 branches all around India, but QSG Delhi is the one I chose. So I started experiencing hair fall when I was in low 20s. I could see a lot of hair fall, and by the time I reached high 20s, I could see a lot of scalp up on my hair. I tried a lot of medications, I tried different shampoos, I tried serums, but nothing really was working out. So initially I started off with oiling my hair, then using serums. Then I consulted my doctor. He recommended me using, but even after using, my results were not really that great. So when I used to go out and everything, when I was in my mid-20s to high 20s, a lot of people used to think I'm in my mid-30s because of my hair fall. After using all the home remedies, all the doctor consultation, and every possible medication, I started researching, and a few of my friends told me about getting hair transplantation done, and they told me the number one country to go for a hair transplant is Istanbul. So I started looking into Istanbul, and I went there in 2024 to get a hair transplant done. That was my first hair transplant. So when I was researching for my first hair transplant in Istanbul, I chose one of the clinics which was referred to me by one of my friends, that he has also been down there and he had a good experience there. After getting in touch with the clinic, they told me they're gonna put 3,500 grafts, and so after going to Istanbul, I got FUE done. The doctor didn't really know the language. We had a translator which will translate everything what I'm saying and what the doctor is saying. So there might be a lot of miscommunication maybe happening in between to relay the messages. To me, the whole procedure kind of felt very rushed up. The very second day, they got me hair wash done. I feel like the language barrier is one of the bigger things up there, which is my main concern, because you cannot really directly talk to the doctor. You have to go through a translator there, who's not really a doctor and who's not really into a health stream. The lesson I learned after my first hair transplant is
post care is very important after every transplant, and which I was not really guided properly by the Turkish doctors there. That's the reason I chose QHT here, because few of my friends have been down there and they had great things to say about it. So for my second hair transplant, I chose QHT Delhi because a lot of my friends have been down here and they had great results up here, and that's the reason I'm choosing QHT Delhi. I traveled to India through Qatar Airlines. It was about 24 hours travel to New Delhi, and after landing down here, the clinic is approximately about an hour from the Delhi airport. It's easily accessible. It's very close to one of the metro stations here, and it's actually on the main road, and you can just it's easily locatable. Comparing my hair transplant from Istanbul to my whatever experience I have in QHT Delhi so far, in Istanbul everything kind of felt like very rushed up, whereas when I came to Delhi and I had my consultation with the doctor, everything was explained to me step by step, what exactly we'll be going through, how many grafts going to be implanted, in what areas, and how much donor area I have, and everything was pretty much explained to me step by step by all the doctors and the technicians. After my first hair transplant, when the results were not super great, I started researching into other clinics in Istanbul, in US, and finally somebody referred me to QHT Delhi, and I started looking into other clinics in India as well, and finally I chose QHT Delhi. After getting in touch with QHT Delhi team, I was talking to one of the consultants down there, and they were super active, and they were able to answer all my questions. And if they don't know any questions, they will tell me that they will get back to me by asking a doctor, and within 24 hours they will get back to me with an answer. So after consulting a doctor at QHT Delhi, they have told me that they will be implanting 4,500 grafts. They will be doing 2,500 grafts on my crown area and about 1,000 in my mid skull. So we'll see how it goes. After 1 year after getting a hair transplant done here, I'm very hopeful that the results gonna be much better. But we'll see how it goes. So I'm actually gonna go to the OT and getting my hair transplant done. Just stay in touch with me so I can share my journey with you guys and help you make a better decision. Hey guys, today is my 5th day of the surgery and first day of the head wash. Overall, my experience was all right. I'm not gonna lie, I had a little pain surgery when they were giving an anesthesia. My surgery actually went the way I thought about it, and I'm hopeful the results gonna be much better than my first hair transplant. For the first 5 days, I was told that I'm not supposed to be stepping out, no direct contact with sun, and just wear the cap if I have to go to the washroom or if I have to just step outside to do something. Just wear the hat. In comparison to Istanbul to QHT Delhi, in terms of restrictions in food, I wasn't really told anything about food restrictions in Istanbul, but down in QHT Delhi, I had a lot of food restrictions from dairy products to meat products to not having spicy food. So a lot of those were restricted for the first 5 days. I'm going to share my results with you once I get the results on. Stay tuned. अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट अभिषेक पांडे की ओर। जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नहीं यार, मेरी ख़राब हो सकती है सर्जरी, बट जैसे हेयर नहीं होते तो आप मतलब थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करते हो। एंड यहाँ पे मतलब हाइजीन को लेके, आपकी सर्जरी को लेके, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका हेयर लॉस किस पैटर्न में है, कमेंट करो, हम आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर गाइड करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मेरी एज 28 है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा हेयर फॉल 2017-18 से स्टार्ट हुआ था। एंड इसके बाद मतलब मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ भी ली और मिनॉक्सिडियल यूज़ किए, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ किए, बट उससे हेयर फॉल रुका नहीं। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले जैसे कि मैंने फिनास्ट्राइड मेडिसिन हो गई, मिनॉक्सिडियल हो गया,
पीआरपी के एक आध सेशन लिए थे, देन फिर उससे कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क था फिर, लेकिन जैसे ही हम दवाइयाँ छोड़ते हैं वो तुरंत हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन था नहीं, क्योंकि हेयर लाइन वो प्रॉपर उसमें नेचुरल मतलब है ही नहीं, उसके अंदर आपको दिखेगी नहीं, फिर वो हेयर फॉल होता ही चला जाता है आपका। तो परमानेंट सॉल्यूशन दवाइयाँ हैं नहीं, तो इसके लिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मतलब कराना चाहता था, तो मैं इसके लिए क्यूएसटी क्लिनिक अभी आया हूँ। हेयर फॉल एक्चुअली पहले मेरी भी बहुत अच्छी डेंसिटी थी बालों की, बट जब वो रिसीड होते चले गए तो फिर कोई रोकने का वही नहीं था, तो यहाँ पे मेरे बाल ज़्यादा ही मतलब गिर गए हैं। एंड प्रोफेशनल लाइफ पे इससे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल हो गया या प्रोफेशनल लाइफ हो गई, तो थोड़ी वो अलग हो जाती है, आप कटे कटे से रहने लगते हो। तो अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मतलब पहले की तरह मैं अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, घूमने फिरने और कहीं भी मतलब आ जा सकता हूँ फ्रीली, मतलब कॉन्फिडेंट के साथ, यही एक्सपेक्टेशन है मेरी तो अभी। और यहाँ पे मैं आया तो स्टाफ तो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब सारी चीज़ें आपकी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली वो खुद ही बताते हैं, कराते हैं, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद ग्राफ्ट मुझे जो बताए गए थे वो 2200 से लेके 3200 के बीच बताए गए हैं, क्योंकि वो डिजिटली फ़ोटो के थ्रू देख के उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है। अब यहाँ पे देख के एग्जैक्टली बताएंगे कितने ग्राफ्ट लगेंगे। तो अब मैं आपको सर्जरी के बाद मिलता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मेरा ट्रांसप्लांट की कैसा रहा ट्रांसप्लांट, कितना पेन हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा डिटेल में बताऊँगा। एंड फिर उसके बाद मिलते हैं। देख रहे हो, मेरे को मेरा रिजल्ट मिल चुका है एंड आप लोग भी आओ। मैंने अपनी सर्जरी कराई थी क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार से, बट मैं अभी दिल्ली क्यूएसटी क्लिनिक पे हूँ एंड यहाँ पे मेरा ये 5वां पीआरपी है। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ क्यूएसटी क्लिनिक के अंदर एंड अपनी 5th पीआरपी के लिए। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है एंड मैंने ये सर्जरी कराई थी, मतलब 11 महीने के आसपास सर्जरी हो गई मेरी एंड काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है 11 महीने में। एंड मेरे माइंड में बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस थे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट मैंने जब ऑनलाइन रिसर्च किया, खुद से देखा, बहुत सारे लोग के रिजल्ट्स देखे, वीडियोस देखी, देन मैंने फिर डिसाइड किया कराने के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था, जैसे कि अलग अलग मिनॉक्सिडिल हो गया, मतलब दवाइयाँ हो गई एंड अलग अलग ट्रीटमेंट्स हो गए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी गया था मैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, बट मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही थी आगे से, फ्रंटल हेयर लाइन। तो मैंने फ्रंटल हेयर लाइन का अपना ट्रांसप्लांट करवाया एंड अभी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मैं अच्छा है और मैं काफ़ी खुश भी हूँ। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब सोच रहा है या प्लान कर रहा है वो सर्जरी बिल्कुल करा सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। एंड ये जो जर्नी होती है थोड़ा सा पेशेंस वाइज होती है, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो तो कभी मतलब ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको ये लग सकता है कि अभी तो कोई मेरी ग्रोथ विजिबल नहीं है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें एंड 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट ग्रोथ आती है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं डॉक्टर्स ने एंड जो भी बताया हुआ गाइडेंस मिलती है उसको प्रॉपर फॉलो करना होता है, तो आपका रिज़ल्ट खुद ब खुद आपको विजिबल हो जाएगा। एंड मेरा रिज़ल्ट भी आप देख रहे हैं, काफ़ी मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है इस टाइम पे एंड मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ जो भी करना चाहता हूँ। एंड आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है। बाकी
मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली सर्जरी करानी चाहिए एंड रिजल्ट्स आपको क्यूएसटी क्लिनिक में बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अंदर जैसे कि जो मेरी सर्जरी है इसके अंदर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये देखना चाहिए कोई भी क्लिनिक है कि कितने साल से वर्क कर रही है एंड कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितने उसके पास जो डॉक्टर्स हैं वो एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक में मैंने खुद से जब रिसर्च किया, मैंने रिजल्ट्स देखे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे एंड एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब हाइजीन को लेके, आपकी सर्जरी को लेके, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कहीं ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे आपको डाउट होगा कि नहीं यार मेरी ख़राब हो सकती है सर्जरी, बट ऐसा नहीं है। आप क्यूएसटी क्लिनिक में आओगे तो रिलैक्स होकर आपका सारा काम इजीली स्मूथली हो जाता है एंड सर्जरी में कोई पेन नहीं होता। बेसिकली बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्जरी के बाद भी मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने सर्जरी करा ली, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया तो अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी एंड कंसल्ट्स बीच बीच में PRPs ये सब लेना पड़ेगा, ताकि बाल की केयर करना तो वैसे भी मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो, वैसे भी अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराया आपने, नॉर्मल लाइफ भी अगर आप आपके हेयर्स हैं तो अगर नॉर्मल डेली रूटीन में भी अगर आप केयर नहीं करोगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे। जैसे हेयर नहीं होते तो आप मतलब थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करते हो एंड कपड़े वगैरह नहीं उस तरीके के मतलब अच्छे नहीं लगते हैं एंड लुक्स वाइज मैटर करता है। अगर मतलब हेयर अच्छे होते हैं तो आप अपने लुक्स बना सकते हो उसके अंदर एंड जो जर्नी होती है उसके अंदर बेसिकली आपको अपना खुद का ध्यान भी रखना होता है एंड जब मैंने क्यूएसटी क्लिनिक पर रिसर्च की तो सारे पॉइंट्स को देखा एंड मैंने अपनी रिसर्च को और क्यूएसटी क्लिनिक को थैंक्स मतलब बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा काम एंड बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, तो मैं डेफिनेटली उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। अभी मेरा सारा प्रोसीजर हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ दिखा भी दिया है एंड अगर आपको भी मेरे जैसा रिज़ल्ट चाहिए तो प्लीज़ आप इसको हेयर फॉल को अवॉइड मत करो, नज़रअंदाज मत करो, क्योर इसका ले लो एंड अगर मोर इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो क्यूएसटी क्लिनिक दिल्ली या हरिद्वार आप विजिट कीजिए एंड अपना प्रोसीजर जो भी है उसको कंप्लीट कराइए। थैंक यू सो मच। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। अब मिलते हैं अपने तीसरे पेशेंट अनूप कुमार से। आइए जानते हैं इनकी जर्नी और रिजल्ट्स के बारे में। मेडिसिन बोला जाता है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक रहते हैं। अगर आपकी जड़ें ही नहीं होंगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। फिर जैसे ही मिनॉक्सिडिल छोड़ा फिर उसके बाद फिर बाल जाने लगे। मेरा नाम अनूप कुमार है। मेरा ट्रांसप्लांट 13 जून को हुआ था और आज मेरी पहली PRP है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से YouTube पे हर जगह पे देख रहा था इस चीज़ के लिए कि कहाँ पे, क्योंकि मेरी जो हेयर फॉल था लगभग मैं जब 18 साल का था उसके बाद चालू हो गया था। फिर उसके बाद मैं तब से कुछ ना कुछ बहुत सारे मेडिसिन जो भी बताता था वो सब ट्राई करता था। फिर इसके बाद मैं लगातार देख रहा था वीडियो वगैरह कि कोई ऐसा क्लिनिक जो मुझे सेटिस्फाई कर सके इस चीज़ के लिए कि मेरी हेयर नेचुरल लगे, हर चीज़ है। फिर उसके बाद जो है मैंने क्यूएसटी पे लगभग 2 साल पहले वीडियो देखा और लगातार टच में रहा। मेरी जॉब प्रोफेशन की वजह से मैं जो है लगभग 2 साल इसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाया। तो जब उसके बाद जब टाइम मिला मुझे तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया। मुझे आज 1 महीना हो गया है और मैं एकदम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होता है वैसे फील करता हूँ हर चीज़। अब कोई नमनेस नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। और हेयर ग्रोथ मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ग्रो अप हो रहे हैं इस चीज़ के लेकर कि हाँ मेरी ग्रोथ अच्छी होगी फ्यूचर में। 12th क्लास के बाद मेरा, जब मैं 18 साल का था तब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके हेयर फॉल गिरता रहा। मैं एक्चुअली इस चीज़ से और डरा हुआ था क्योंकि मेरा जेनेटिक हेयर फॉल है। मेरे पिताजी के बाल नहीं हैं, मेरे भाई के 28 साल की उम्र में काफ़ी सारे बाल गिर गए।
वो बाल्डनेस का शिकार हुए। फिर उसको लेकर मैं इस चीज़ से और घबराता रहता था कि मेरा भी यही हाल होगा आगे चल के। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का, क्योंकि मेडिसिन बोला जाता है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक रहते हैं, अगर आपकी जड़ें ही नहीं होंगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो इस चीज़ को लेकर जब पिताजी के देखता था तो उनसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि जेनेटिक है। 18 साल के बाद धीरे धीरे जब बाल गिरना स्टार्ट हुए, तो जब मैं 25 ईयर का हुआ तो मेरे यहाँ क्राउन एरिया पे बहुत सारे, मतलब मैं जब फ़ोटो लेता था तो क्राउन मेरा दिखाई देने लगा था 25 साल की उम्र में। तो जब रहता था कि बाल सेव कर लीजिए, फिर उसके बाद बाल सेव किए, मिनॉक्सिडिल यूज़ किया तो कुछ समय तक ही बाल आए, फिर जैसे ही मिनॉक्सिडिल छोड़ा फिर उसके बाद फिर बाल जाने लगे। तो ऐसा ये कंटिन्यूअस ये रूटीन चलता रहा। तो फिर एट अ फाइनल टाइम मैंने फिर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया और क्यूएसटी पे मैंने भरोसा दिखाया और आज 1 महीना हो गया है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मेरा। मैं जब शैम्पू करता था या कॉम्ब करता था तो बाल आते थे उसमें, और शैम्पू करते समय काफ़ी टाइम थी, इस डर से मैं शैम्पू लगभग हफ्ते में 1 बार करता था कि मेरे बाल ना टूटें। और ऑयलिंग करना भी मैंने धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि जब भी मैं ऑयल लगाता था तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। सोते टाइम तकिए पे बाल आ जाना नॉर्मल था। ठंडियों के टाइम मुझे बालों को हेड शेव कराना एक ज़रूरी सा हो गया था, क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत बाल गिरा करते थे और अगर नहीं कराता तो देख देख के इरिटेशन सी होने लगती थी इस चीज़ को लेकर। क्यूएसटी को मैं रेगुलर यूट्यूब पे देखता रहता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा। इनकी अब वीडियो जैसे मान लिया जर्नी दिखाते थे, उस पर डेली ट्रांसप्लांट की वीडियो 2-4 डेली वीडियो आते थे। तो मेरा इतना वो हो गया था कि मैं डेली वीडियो देखता था कि कैसे लोगों की जर्नी रहती है। मैं उस समय ट्रेनिंग पीरियड में था तो मैं रेगुलर टच में रहता था, क्योंकि उस समय भी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसा रहा कि लास्ट में, अभी पिछले साल की बात है, वही नवंबर दिसंबर में मेरे ये क्राउन एरिया पूरा यहाँ पे बाल्ड हो गया बहुत तेज़ी से। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आप यहाँ से दवाई ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। मैंने वो भी ट्राई किया, पर उसके बाद लास्ट में वही फरवरी के आसपास मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया। मैं हालांकि कांटेक्ट मैंने पहले भी किया था, मैंने 2020 में कांटेक्ट किया था क्यूएसटी से। तो क्यूएसटी ने मुझसे बताया था ट्रांसप्लांट के लिए आपके इतने ग्राफ्ट लगेंगे। तो उस समय मुझे ट्रेनिंग फेज़ में जाना था, तो ट्रेनिंग में स्वेटिंग बहुत चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं करवा नहीं पाया, मैंने इसको डिले किया। फिर फरवरी में, अभी जब मेरी ट्रेनिंग ओवर होने वाली थी, मैं फरवरी में फिर उसके बाद मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया और मैंने अपनी एक स्लॉट बुक करवाया। और फिर मैंने उनसे ये डेट कंफर्म नहीं बताई, मैंने कहा आप स्लॉट बुक कर लीजिए मेरा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। और फिर अभी पिछले महीने के ही मैंने डेट फिक्स की और फिर उसके बाद यहाँ पे आया और ट्रांसप्लांट को आगे बढ़ाया, अपना गो अहेड किया। मैं जब यहाँ पे आया तो डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, डॉक्टर ने फिर बताया कि आपके 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, जिससे आपका बाल्डनेस पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने अच्छे से बात की। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, हालांकि मैं सवाल, उन्होंने एक यहाँ पे पेपर देते हैं लिखने के लिए कि आपसे जो पूछना हो, तो उस टाइम मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या पूछूं। बहुत सारे थॉट्स मन में थे, फिर भी मैं बोल रहा था क्योंकि नर्वस था इतना। और फिर उसके बाद मैंने जितना हो सका डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया। बहुत यहाँ की हाइजीनिक, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। पूरा स्टाफ सपोर्टेबल है, सपोर्ट करता है। किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ भी पूछते हैं आपको बताते हैं, कैसे कि आपको आगे प्रिकॉशंस लेने हैं किसी चीज़ पोस्ट सर्जरी के बाद, वो भी बताते हैं। प्री प्रिकॉशन जब आप सर्जरी कराने के लिए आते हैं उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ था। मुझे 4000 ग्राफ्ट लगे थे। मैंने क्यूएसटी टेक्निक को चूज़ किया था क्योंकि उसका ग्रोइंग रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब यहाँ से ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप घर चले जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ क्यूएसटी से जो टीम है हमेशा रेगुलर टच में रहती है। पर डे कॉल आना या पर डे मैसेज के थ्रू डेली अपडेट पिक्चर्स मांगना कि कैसा आपका है, कैसा रिजल्ट है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, ईचिंग या कुछ भी होता है, तो वो उसके लिए हर चीज़ बताते हैं। या आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से भी कंसल्ट कराते हैं। मैं इसके बाद यहाँ से जब जाने के बाद गया, फिर उसके बाद रेगुलर टच में रहा और बराबर अगर कोई भी दिक्कत होती थी मैं पिक्स शेयर करता था, अपनी डॉक्टर से बात भी की और जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी बताता था। रेगुलर यहाँ से कॉल मैसेजेस कि सर आप अपनी कंडीशन बताइए, रेगुलर टच में रहते हैं। यहाँ के जो टीम वर्क है बहुत अच्छा है। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसको बाल्डनेस ज़्यादा है या कम है, तो एक बार
QST ज़रूर विजिट करें और अपना कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप करें। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 12 जून 2024 को हुआ था। आज मुझे 3 महीने पूरे हो गए हैं। मैं सेकंड PRP के लिए आया हूँ। तो फर्स्ट PRP मैं 1 मंथ के बाद लिया था और सेकंड PRP मेरी 2 महीने का गैप हो चुका है। मुझे आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं जब आया था तो कितनी बाल्डनेस थी और उम्मीद है कि अब मेरा रिजल्ट ग्रो अप होगा। जैसा कि बोलते हैं कि 3 महीने तक पेशेंस रखना पड़ता है, 3 महीने के एक्चुअल बात जो है रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो उससे पहले जब मेरी बाल्डनेस काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करता था, सोचता था कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पेनफुल सर्जरी होती है। एक्चुअल में मुझे लगा था कि जेनेटिक हेयर लॉस है, उसके कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो मैंने लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही उचित समझा। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट ले आया तो थोड़ा नर्वस था पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे जो QST टीम है अपनी बहुत अच्छा सा सपोर्ट करती है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ का ध्यान रखती है। ट्रांसप्लांट के बाद जैसे कि हम सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद QST टीम रेगुलर बेसिस पे डेली टच में रहती है। डेली की फ़ोटोज़ शेयर करना, उसके बारे में बताना, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कराना, हर चीज़ के रेगुलर टचअप पे रहती है। जैसा कि 1 महीने तक की हम लोगों का वो रहता है। तो दिन बेसिकली जितना भी होता है कि डॉक्टर यहाँ से पर डे के हिसाब से पर डे आपको फ़ोटोज़ भेजनी रहती है, पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बने रहिए आप मेरे इस जर्नी के साथ। मैं अगली PRP के साथ आप लोगों से फिर मिलता हूँ और अपने रिजल्ट को इन्हांस करके दिखाता हूँ। थैंक्स QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.